Hello everyone. In today's video, I am going to explain you about direct and inverse variations. Before I explain you the variation, I would like to explain you the meaning of the word variation. Variation word is made up of vary. Vary means change. So the meaning of variation is if the two quantities are related in such a way that change in one quantity brings corresponding change in the other. So I am writing this: if two quantities or two values, if two quantities are related in such a way, if two quantities are related in such a way that a change in one quantity brings the corresponding change in the other quantity. The corresponding change in the other quantity. Right? Now we are to discuss about direct variation. Direct variation क्या है? Direct variation. Before I explain direct variation to you, I will give some examples. जैसे suppose in a family there is consumption of 2 liters of milk. 2 liters of milk by how many family members? 4 family members. Right? So if 3 liter milk is available, naturally if milk has increased, more family members can consume it. So means maybe 6 family members can consume that. So as the quantity of milk has increased, the number of family members who are consuming that milk have increased. So the increase in number of members is causing increase in consumption of milk. Means जैसे फैमिली के मेंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो मिल्क की कंजम्पशन भी जो है वो बढ़ जाएगी. एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे 2 चॉकलेट्स हैं, राइट? उनकी कॉस्ट जो है वो ₹10 है. तो जो 4 चॉकलेट्स लेंगे तो उसकी कॉस्ट कम होगी या इंक्रीज होगी? इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी इसकी, ₹20. Right? So an increase in number of chocolates is bringing increase in the money spent on it. Means जैसे ही चॉकलेट्स का नंबर इंक्रीज किया तो उसके ऊपर स्पेंड किया जाने वाला मनी भी इंक्रीज हो गया. राइट? तो इस तरह की जो वेरिएशन है उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. राइट? तो डायरेक्ट वेरिएशन की आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं. डायरेक्ट वेरिएशन आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? Direct variation, if two quantities are related in such a way, if two quantities are related in such a way that an increase in one quantity brings corresponding increase in the other quantity, and vice versa.
वाइस वर्सा का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही है, और अगर एक डिक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी। तो इस तरह की जो वेरिएशन है उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अगर इसको मैं एक्स और वाई की फॉर्म में डिफाइन करूं, जैसा कि हमने क्वेश्चंस में यूज करना है, तो लिखेंगे टू क्वांटिटीज x and y are said to be in direct variation। दो क्वांटिटीज x और y को हम बोलेंगे कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। टू क्वांटिटीज x and y are said to be in direct variation if x and y increase or decrease together, they increase or decrease together in such a way that x upon y remains constant। तो ऐसे केस में x अपॉन वाई हमेशा कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। जब भी आप डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस करोगे यही फॉर्मूला जो है वो आपका यूज होगा कि अगर x और y दो क्वांटिटीज हैं और उनके बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है तो वो फॉर्मूला क्या लगेगा? x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। अब बारी आती है इनवर्स वेरिएशन की, राइट। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या है? इनवर्स वेरिएशन, कई बच्चे इसको इनडायरेक्ट वेरिएशन बोल देते हैं। इनडायरेक्ट कोई ऐसा वर्ड नहीं है, दिस इज इनवर्स वेरिएशन, राइट। तो इनवर्स वेरिएशन ये है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, और अगर एक डिक्रीज करती है तो दूसरी इंक्रीज करेगी। तो मैं इसमें लिख रहा हूं इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड in such a way that an increase in one causes corresponding decrease in the other quantity, and vice versa। and vice versa means उसका उल्ट, जैसे एक इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डिक्रीज कर रही है, और अगर एक डिक्रीज कर रही है तो दूसरी इंक्रीज करेगी। तो इस तरह की कई एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे 52 पर्सन है, मान लो 52 men, they are employed by a contractor for building some house, right? They are to complete the work in 35 days, या they complete the work in 35 days। now अगर मैं बोलूं मैंने मैन डिक्रीज कर देने हैं, 28 कर दिए मैंने मैन, तो डेज ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? तो डेज तो ज्यादा हो जाएंगे, लगभग 65 डेज लगेंगे। तो क्या हुआ? नंबर ऑफ मैन हैव डिक्रीज्ड, तो नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन टू कंप्लीट द वर्क हैव इंक्रीज्ड। तो ऐसे केस में जो है वो कौन सी वेरिएशन लगेगी? इनवर्स वेरिएशन। अब इसको मैं मैथमेटिकली, जैसे कि हमने क्वेश्चन में यूज करना है, अगर वैसे करूं तो कैसे लिखेंगे? टू क्वांटिटीज x and y, two quantities x and y are said to be in inverse variation,
दो क्वांटिटीज x और y को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स वेरिएशन में है। इफ एन इंक्रीज इन x, if an increase in x causes corresponding decrease in y and vice versa, मीन्स अगर x इंक्रीज किया तो y डिक्रीज करेगा, और अगर x डिक्रीज किया तो y इंक्रीज करेगा। तो वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मीनिंग अब आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो आगे लिखेंगे इन सच अ मैनर दैट एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट, एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब है एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब आपके इनवर्स वेरिएशन के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये रिलेशनशिप लगेगी, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये थी डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप you have got the complete clarity of direct and inverse variation and what formula is to be applied। ये फॉर्मूला रहेगा इनवर्स वेरिएशन का, और जब डायरेक्ट वेरिएशन का आएगा तो ये फॉर्मूला रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला आता है आपसे कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। सो एक्सप्रेस योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, एंड like the video and share the link of the channel with maximum students. Thank you.